Hello students, today we will take our poem Childhood from Hornbill. आज हम childhood poem पढ़ेंगे. क्या which age do you like most? Which age do you like most? Yes, ma'am. Childhood. Yes, ma'am. Childhood. Do you like your childhood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you want to go in your childhood again? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you tell me when did you lose your childhood? Can you tell me? When did you lose your childhood? Ma'am, I can't tell exact date. Beta, I am not asking the exact date, but when did you feel that your childhood is no more? Ma'am, we just come in higher classes. When you came in higher classes in 9th class? Yes, ma'am. Yes, Or ma'am. the elders or the parents say before you that you are not a child now. When you felt that you are not a child now. जब तुम्हारे पेरेंट्स ने आपको कहा हो कि अब तुम एक बच्ची नहीं हो, then you felt that your childhood is lost. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कहा है ना पेरेंट्स Yes, ने ma'am. बच्चों जैसी नॉटीनेस हम कर देते हैं, फिर पेरेंट्स कहते हैं, हमारे एल्डर्स कहते हैं कि तुम अभी बच्ची नहीं हो. तो when we get this type of arguments from our elders, we feel that our childhood is lost now, or we get some maturity or sincerity in our work, then we feel that we are not a child now. So the same story of this poem is this, okay, the poet is not confirmed that when did he lose his childhood. Although he is confirmed that he has lost his childhood, but it is not confirmed to him what was the date or what was the age when he lost his childhood. Then he says that the poet is very surprised at that point of the life he ceased to be a child. His finished, complete. बंद करना किसी बात को, तो पोएट बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है इस पोएम में जब वो ये देखता है कि ही इज टू बी अ चाइल्ड, कि अब वो एक बच्चा नहीं रहा, उसकी चाइल्डहुड खत्म हो चुकी है. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता है. इट वाज व्हेन ही एंटर्ड द 12th year of his life, or perhaps it was when he became sensible enough to realize that hell and heaven are not to be found in geography. He asked from himself, was it the age when he entered in 12th years? जब क्या ये वह एज नहीं है जब उसने 12th years में एंट्री की, और when he came to know what is the difference between hell and heaven, और वह ये जान गया कि hell and heaven में, स्वर्ग और नरक में क्या differences होता है. तो perhaps he lost his childhood. He again says that he might be lost his childhood when he became adult, when he came to know what what adults or the elders says, they did not follow it, कि जो elders से कहते हैं वो उसको follow नहीं करते. when he came to know it, जब वो यह जान गया, so he might have lost his childhood. And he again says that he might have lost his childhood when he came to know what is right and wrong path. कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है. तो he might have lost his childhood. तो यही सब उसमें आता है, बार बार उसके माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं कि कब उसने अपनी चाइल्डहुड खोई, और फिर वो लास्ट में डिसीजन ये लेता है कि इट इज ट्रू दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि वो ये बिल्कुल बात सच है कि वो अपनी चाइल्डहुड खो चुका है. बट वेयर डिड इट गो, लेकिन उसकी चाइल्डहुड कहाँ गई. वेयर ही कैन फाउंड हिज चाइल्डहुड, कहाँ पर वो अपनी चाइल्डहुड को पा सकता है. वेयर कैन यू फाइंड योर चाइल्डहुड बेटा, कहाँ पर आप अपनी चाइल्डहुड को ढूंढ सकते हो. वेयर कैन यू फाइंड योर चाइल्डहुड. इन लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों में यू कैन फाइंड योर चाइल्डहुड. आप छोटे छोटे बच्चों को जब खेलते हुए देखते हो तो लगता है ना, तब हम याद करते हैं ना अपने बचपन को भी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम भी अपने बचपन को याद, जब बाहर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं गार्डन में, पार्क में,
तो हम भी अपने बचपन को याद करने लगते हैं कि हाँ हम भी ऐसे खेलते थे, हम भी बचपन में ये करते थे, और हमारे पेरेंट्स भी उन बच्चों को देख के फिर हमारे पेरेंट्स भी कहने लगते हैं कि देखो तुम भी तो ऐसे करते थे, हमारी बच्ची भी ये छोटी थी तो ये भी ऐसे ही करती थी। तो तब हमें डिसाइड होता है कि हाँ हमारा चाइल्डहुड हम कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों में हम अपने चाइल्डहुड को ढूंढ सकते हैं। तो बेटा वी विल स्टार्ट द पोएम नाउ। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11? When did my childhood go? The poet is realized that his childhood has gone. पोएट महसूस कर रहा है, पोएट को पता है कि उसकी चाइल्डहुड खत्म हो चुकी है, लेकिन यह चाइल्डहुड कब खत्म हुई, उसका बचपन कब खत्म हुआ? What is the day I ceased to be 11? क्या यह वह दिन था जब वो 11 ईयर्स का पूरा हो चुका था और 12 ईयर्स में एंट्री उसने कर ली थी? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या यह वह समय था जब उसे महसूस हुआ कि हेल एंड हेवन को could not be found in geography, ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाया जा सकता, नहीं ढूंढा जा सकता। There is no place of hell, there is no existence of hell and heaven in geography. तो क्या उसे तब पता चला कि उसकी चाइल्डहुड खत्म हो चुकी है? बेटा what is hell and heaven? Is it a proper place where we can go? मैम स्वर्ग और नर्क को कहा जाता No, है। ma'am. स्वर्ग और Ma'am, नरक को it's कहते तो हैं। imagination. Is it a proper place? नो मैम। फ्रांस, ma'am. ब्रिटेन, हाँ तो क्या है? What is this hell and heaven? Ma'am, I'm it's bad and good. imagination. Bad and bad good. and good. It means कि अगर हमारे पास हमारा ये जो लाइफ है हमारी हेल एंड हेवन है। If we are passing our life in happiness, there is no problem. अगर हम अपने जीवन को खुशियों से स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की हमें शॉर्ट कमिंग्स नहीं है, तो वी थिंक दैट वी आर इन, तब हम क्या सोचते हैं कि हम कहाँ हैं? हेवन में। और अगर किसी की जिंदगी, किसी की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल में बीत रही है और उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं है, तो वो क्या कहता है कि हमारी जिंदगी तो क्या है? बिल्कुल हेल है, बिल्कुल नरक है हमारी गो टू जिंदगी। हेल भी कहते हैं। हाँ कहते हैं ना। तो क्या अभी किसी को स्कॉल्डिंग करते हुए भी कह देते हैं कि गो टू हेल, नरक में जाओ। व्हाट इज दिस नरक? ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी खुशी ना हो, तुम्हें अपना पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़े, दैट इज हेल। एंड वेयर इज लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज हेवन। तो हेल और हेवन क्या है? हमारे मन की भावनाएं हैं कि हाँ ये हमारे लिए हेल है और ये हेवन है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो इनको ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढा जा सकता। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मुझे पता चला कि मेरी चाइल्डहुड खत्म हो चुकी है? तो क्या कहता है कि मेरी चाइल्डहुड कब खत्म हुई? क्या यह वह दिन था जब मेरी 11 ईयर्स की एज पूरी हो गई और मैंने 12 ईयर्स में एंट्री कर ली? या क्या यह वह दिन था जब मुझे यह पता चला कि ज्योग्राफी की बुक में हेल एंड हेवन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यह कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है? अब अगेन ही इज asking from himself, when did my childhood go? मेरी चाइल्डहुड कब खत्म हुई? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या यह वह समय था जब मुझे पता चला कि adults were not all they seem to be, कि adults ऐसे नहीं हैं जैसे कि वो दिखाई देने का प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं। They talk of love and preach of love, वो बातें तो लव की करते हैं, preach माने समन, उपदेश तो लव की देते हैं, टीच तो लव का करते हैं, बट डिडंट एक्ट टू लविंगली, लेकिन अपने आप इतना लविंगली एक्ट नहीं करते। देखो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं हमें कि बेटा प्यार से रहना, लड़ाई नहीं करते, अपने भैया बहनों के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं के बिहेव को देखते हैं, उनको वो उस बात को फॉलो नहीं करते, तो हमें पता चल जाता है कि शायद अब हमारा बचपन है। क्या है, पहले तो हम बचपन में अपने पेरेंट्स की या किसी भी एल्डर्स की बात मानते रहते हैं कि हाँ इन्होंने सही कहा, इन्होंने सही किया, सही कहा, और फिर जब हमें पता चल जाता है कि नहीं, जो हमारे पेरेंट्स या जो हमारे बड़े हमसे कहते थे, लेकिन जब टाइम आता है तो वो उसको फॉलो नहीं करते, हमारे अंदर ये समझ उत्पन्न हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि नाउ वी आर नॉट अ चाइल्ड, कि हम अब बच्चे नहीं हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हुआ? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, क्या यह वह समय था जब मुझे पता चला कि आई हैव full right on my own desires, my mind is mine and my thoughts are mine।
जब मुझे ये पता चला कि मेरा अपने डिजायर्स पर, इच्छाओं पर पूरा अधिकार है, मेरा माइंड अपना माइंड है, मेरे विचार अपने हैं, whatever I want I can do, जो कुछ मैं चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, तो क्या तब मेरा बचपन खत्म हुआ? To use whichever may I choose, I can go on that path which I choose. मैं उस रास्ते पर चल सकता हूँ जिसको कि मैं चाहता हूँ. Was my childhood lost at that time, producing thoughts that were not those of other people but my own? और जब मुझे यह पता चला कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी दूसरे की अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई ऑर्डर नहीं है, तो पोएट यही सोच रहा है कि शायद मेरी चाइल्डहुड तब खत्म हुई जब मुझे पता चला कि मेरे विचारों पर, मेरी थिंकिंग पर मेरा राइट है, जो मैं कर रहा हूँ अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, मैं किसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा हूँ. तब मुझे पता चला कि शायद मेरा बचपन खत्म हो चुका है. एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? अब पोएट को ये तो पता है, इट्स डेफिनेट टू पोएट कि उसका चाइल्डहुड खत्म हो गया है, बट वेयर डिड इट गो? लेकिन ये कहाँ गया? It went to some forgotten place. और यह कहाँ चला गया है? किसी forgotten place पर चला गया है. That is hidden in infant face. That is all I know. और शायद उसका जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पर चला गया है? The place is hidden in that innocence. क्या है कि वो जो प्लेस है, forgotten place क्या है? वो innocence यानी छोटे छोटे निर्दोष बच्चे के, infant मीन्स इनोसेंट फेस ऑफ अ चाइल्ड, छोटे बच्चे के इनोसेंट फेस में जाकर के छिप गया है. बस मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि मेरी चाइल्डहुड कहाँ चली गई है, और मुझे यह पता है कि हाँ मेरी चाइल्डहुड खत्म हो चुकी है. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. चले बेटा. नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. फर्स्ट, हु आर दे? हु आर दे? बेटा सेकंड स्टैंजे में आपके दे वर्ड्स है, बट फॉर होम दे इज रेफर्ड हियर. किसके लिए दे आया है? मैम आवर एल्डर्स. हाँ, दे आर द एडल्ट्स हु प्रीच अबाउट लव बट नेवर एक्ट अकॉर्डिंगली. दे किसके लिए आया है? एल्डर्स के लिए आया है, जो कि किसके बारे में? प्रेम का उपदेश तो देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं करते? एक्ट नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व अबाउट देयर बिहेवियर? पोएट एडल्ट्स के बिहेवियर में क्या ऑब्जर्व करता है? मैम वो ये ऑब्जर्व करता है कि वो हमसे तो कहते हैं कि प्यार से रहना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो इस बात को भूल जाते हैं. हाँ, वेरी Ma'am, they गुड. did not act as so lovingly. वेरी गुड. द एडल्ट्स वर नॉट व्हाट दे सीम्ड टू बी. एडल्ट्स जैसा दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते एक्चुअली. दे प्रिटेंड अ लॉट. वो बहुत ज्यादा बहाने करते हैं. दे आर हिपोक्रिटिक. वो हिपोक्रिटिक्स होते हैं. Who preach love and all good things but behave in a different manner. जो अच्छे कामों का, प्रेम का उपदेश तो देते हैं, लेकिन काम जो करते हैं डिफरेंट मैनर में करते हैं. बेटा, which word in the above, in this paragraph या in this poem is similar in the meaning of sermonize? कौन सा वर्ड आपकी इस पोएम में sermonize के सेम मीनिंग है? What is sermonize? उपदेश देना. Ma'am, preached. हाँ, very good, preach. Next question, what has the poet lost? Poet ने क्या lost कर दिया है? Ma'am, his childhood. Childhood. His childhood. When, very good. When did the poet lose his childhood? When did the When he poet? was 12. When he he was just 11 years old. When he came to know that there is no proper place for hell and heaven in geography book, and when he came to know, बेटा पूरी poem की summary आ जाएगी. When he came to know that adults were not all they seemed to be, they preach of love but never act accordingly. And when he came to know that his mind is his own mind, he has right on his thinking thoughts, then he lost his childhood. बेटा स्टॉप का सेम मीनिंग वर्ड इसमें से आप चूज करिए पोएम से. फाइंड अ वर्ड विच मीन स्टॉप फ्रॉम द पोएम.
stopped, Yes. ceased, what does poet wants to know? poet क्या जानना चाहता है? मैम वो ये जानना चाहता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। Where did his childhood go? And when did and where did his childhood go? कहाँ गया और कब गया? चलिए, वेरी गुड बेटा. What does the child think about the adults? ये हम कर चुके हैं. Why does the poet feel that hell and heaven are not real places? Why does the poet feel that heaven and hell are not real places? क्यों poet feel करता है कि hell and heaven real places नहीं हैं? Ma'am, because according to his opinion, Ma'am, because they can't be found in geography. हाँ, it could not be found in any book or the atlas. So as the speaker grew mature, जब speaker mature हो जाता है, जब poet mature हो जाता है, तो he acquired reasoning power. उसको क्या मिल जाती है? reasoning power. सोचने समझने की उसमें शक्ति आ जाती है. He realized that hell and heaven could not be found in geographies, books or atlas. Since they could not be located anywhere in the world map, he concluded that they did not exist. There is no existence of hell and heaven. कि जब ये इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी बुक में, तो उसे यह पता चल जाता है कि ये हेल एंड हेवन नाम का कोई प्लेस है ही नहीं. He would believe only what he could see and find. और वह उस बातों में विश्वास करने लगता है जो कि वो देखता है और जो उसे मिलती है. What, according to the poem, is involved in the process of growing up? Yes, beta. What, according to the poem, is involved in the process of growing up? मैम जब उसे ये पता चलता है कि अब जो मेरे थॉट्स है वो मेरे हैं, किसी दूसरे के नहीं है. हाँ, और जब उसे ये पता, देखो ग्रोइंग अप उसकी बड़े होने की प्रक्रिया कैसे होती है? जब वो 11 इयर्स पूरा कर लेता है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब उसे हेल एंड हेवन में डिफरेंस का वो ये पता चल जाता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस. जब उसे ये पता चल जाता है कि जो एडल्ट होते हैं वो जो कुछ करते हैं और जो कुछ कहते हैं उसमें ग्रेट डिफरेंस है. और लास्ट में जब उसे ये पता चल जाता है कि उसके विचार अपने विचार हैं, वो जो करेगा अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो वो अपनी इच्छाओं का मालिक है. यही क्या है? ग्रोइंग अप की प्रोसेस है. तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 3 important steps. First, the child begins to differentiate between truth and fiction. Hell and heaven, truth and fiction होता है. So the second step is when he begins to understand the false pretense of the people around him. And the last and the most important step in the process of growing up is independent thinking. Next question, what is the poet's feeling towards childhood? देखिए बेटा, he feels as if he has lost his own child or something most dear of his heart, and he has lost his innocence too. और बहुत दुखी होता है जब उसकी चाइल्डहुड, जब वो महसूस करता है कि उसका बचपन चला गया है, क्योंकि वो अपने बचपन को बहुत ज्यादा प्यार करता होगा और वो यही सोचता है कि उसकी इनोसेंस भी, बचपन खत्म हुआ तो उसकी इनोसेंस भी चली गई. चलिए बेटा, बाकी क्वेश्चन इसमें से सेम ही आ रहे हैं. अब आप बताइए कि इज देयर एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस पोएम? नो मैम. No, ma'am. ओके. नो मैम. No, ma'am.